Good evening, friends. I welcome each one of you on behalf of Ignite Minds by EHF. I am Dr. Manisha Soni and I'm your host for today evening. Friends, today is the 38th session of our lecture series on Beauty Ke Saath Guruvar. It is the first week of the month and we are fortunate to learn from our very own Guruji. And I feel very honored and very happy to introduce the speaker for today evening. It is none other than Dr. Liaquat Namole from Nasik. He is my friend, my brother, and my guide. And I have known Dr. Liaquat since my college days. He, to tell you something, he is very creative, very intuitive, very sharp and quick. And all these qualities, along with rich knowledge of homeopathy, is what makes him stand apart from the rest. He has a rich experience of more than 27 years of practice, passionate practice of homeopathy. He has taken around 300 seminars all across India, and on the online learning platform, he's taken almost more than 200 seminars. He is also the author of the book Humanopathy. And one more thing that I wanted to share over here is that he is a master of gestures. And nothing misses his sharp eye. And I'm here to testify that because I have been using the gestures in my own practice and it has never failed me. So friends, let's be very, very attentive. We are going to see, here a very interesting lecture. And let's keep our mics muted so that we don't miss anything today from Sir's lecture. Right now, let's unmute and give Sir a big, big round of applause. Welcome. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. थैंक यू. चलो प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट कर लो. जब मैं बताऊंगा तो प्लीज अनम्यूट करना. बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना. प्रॉब्लम इज I do not actually prepare the lecture. Okay, I have things going in my mind that I want to speak on this topic. That's it. I don't like to prepare. So yeah, it's there. So when I'm speaking, the flow, kindly, it's a request as always. I don't like to be strict and harsh, but it's a request for everybody. It's a request. आपके वीडियोस और माइक प्लीज म्यूट रखा करो. जब भी सवाल पूछना है तो आप जरूर ये करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस वक्त मुझे मत काटो. बस that is the only one request that I have. And yes, so what was the thing that we were discussing? We were discussing about rheumatic arthritis, right? And we spoke about the concerns of the patient as to what condition leads to rheumatic arthritis and how does the patient feels, right? Because of the disease. Okay, what is the delusion that he is living in? Right, these are the things that we have discussed in the last session. इनको अभी तक भी समझ में नहीं आया, देख, है ना? इनको अभी समझ में नहीं आ रहा. Anyways, so now what we are going to discuss? We are going to discuss the states, right, of the patient. Hello. In what is the why is the patient, how is the disease bothering him? Is what we ask. Simple. Okay, how does this bother you? मतलब in other words, we try to understand the concern of the patient. इसको ये बीमारी को लेकर इसको exactly क्या फिक्र हो रही है? फिक्र से फायदा क्या होता है ना कि ये बीमारी पेशेंट के लाइफ के कौन से कहाँ पर लाइफ में ये बीमारी कौन से एरिया में पेशेंट को हार्म करने वाली है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? एज टू वेयर एग्जैक्टली, है ना? मैनेजमेंट का एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है. आई ऑलवेज लाइक वन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. One single line definition of management is where the shoe pinches. So where is this rheumatic arthritis pinching the patient? है ना? आपने देखा होगा ना कि a good manager is not the one कि वो हर एक के कार जाके देखेंगे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. नहीं, वो तो वॉचमैन का काम होता है ना? ये क्या कर रहा है, वो सुपरवाइजर का काम होता है, जो सुपरवाइज करता है. ये कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है कि नहीं, ये कैसे कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है. That is the job of supervisor.
Many times our managers are supervisors, but a real manager, a good manager is the one who only goes and sees whether his work is done or not. Okay, उसका जो target है वो complete हो रहा है, fair. Then he just goes and sees where exactly the problem is. That's it. He goes and corrects the problem. That's it. And he gets it corrected. Many times he has to go and correct it. Many times he gets it corrected from the concerned authority. Right? That is the manager. That is how the doctor has to be. A homeopath, a good homeopath has to be the one who tries to understand where exactly the problem is. How is the problem affecting the patient's life? जिसको हम लोग बोलते हैं PD, problem definition. है ना? That is also another word that we use, PD. Okay? So now, many of the rheumatic arthritis patients will come to you saying कि सर मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता. होते हैं ना आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि सर मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता हूँ. अगर आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहता हो तो उसके लिए आपके सामने सीधा सीधा रूब्रिक आता है इंडिपेंडेंट, है ना. Again, another rubric which is very close to independent is, can anybody tell which is a rubric which is very close to independent? Come on, now you can unmute and speak. पॉजिटिवनेस. नहीं, डिपेंड इंडिपेंडेंट, उसका कंसर्न इंडिपेंडेंट है कि भाई मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता हूँ. Give me a moment. Delusion want he will come. Delusion want. Not exactly want. Anything else? Anything else that you can think of? Freedom Hello? desire. Sorry? Freedom desire. फ्रीडम नहीं बेटा, यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है. तो फ्रीडम तो क्या है, वो तो लिबर्टिनिज्म हो गया. फ्रीडम डिजायर का तो अलग हो जाता है ना, वो एक अलग एस्पेक्ट आएगा. लिबर्टिनिज्म ठीक है, मेरी खेलना कूदना बंद हो जाएगा, मैं ऐश नहीं कर सकता, मैं पहाड़ों में नहीं जा सकता वगैरह, वो एक अलग हो गया, है ना. वो लिबर्टिनिज्म हो गया. फ्रीडम उसकी कम हो रही है, वो एक अलग हो गया. ये तो ऑफकोर्स है कंसर्न, ये भी एक रहेगा पेशेंट का, आप जो बोल रहे हो वेरी राइट, बट दैट इज नॉट समथिंग टू डू विद इंडिपेंडेंस, राइट. Hindrance हो सकता है. नहीं, हिंड्रेंस पे आपका इंडिपेंडेंस कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो रहा ना, आपको बीच बीच में रोड़े आ रहे हैं ना. फ्रीडम डिजायर डिफरेंट थिंग. हाँ बोलिए. आपको जैसे आप बोल रहे हो कि बेलाडोना भी इंडिपेंडेंट में है तो उसकी लिबर्टी चली जाएगी. ओके, लेकिन रूब्रिक विच इज वेरी क्लोज टू इंडिपेंडेंस, बोलिए. सेल्फ रिस्पेक्ट. वेरी गुड. तो क्या रहेंगे उसको आप? Egotism. सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट ईगो बेटा. Dignified. डिग्निफाइड. वेरी Dignified. गुड. डिग्निफाइड होता है. और वेरी गुड. और क्या आएगा? समझ रहे हो? इंडिपेंडेंस का रूब्रिक इज डिग्निफाइड. अनदर इज, कौन बच्चा रहेगा जो चाहेगा कि भाई मैं अपने बलबूते पे करूं? देखो, इंडिपेंडेंस इज डिजायर. इंडिपेंडेंस कैन ऑल्सो बी योर मजबूरी, राइट. कि बिकॉज ऑफ द IPR, because the things are around him are such that he has to be bloody independent, right? Hello? Hello? Helpless होगा तो फिर. हेल्पलेस नहीं. एक आता है डिल्यूजन डाई मस्ट, कि भाई झक मार के मेरा मुझे ही करना है. बोलते ना मराठी में कहावत है, आपलं मड आपल्यालाच उचलावं लागतं. मतलब खुद का क्या होता है, जनाजा खुद ही उठा कर ले जाना है. ये एक चीज होती है. और एक चीज होती है डिग्निफाइड के क्लोज में. कोई बताएगा जो इंडिपेंडेंस, व्हाई दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट? एक तो डिग्निफाइड रहेगा कि नहीं भैया किसकी मदद लेने का भी तो कुछ है ना. और एक होता है फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि बच्चे अभी ऐसी बात करते हैं सर, अभी तो मैं थोड़ी सी इनको मदद मांग रही हूँ, जब पूरी तरह इन पर निर्भर हो जाओगी तो क्या करो. समझ रहे हो?
उसके अंदर फियर ह्यूमिलिएशन है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इंडिपेंडेंस में कार्सिनोसिन नहीं है, फियर ह्यूमिलिएशन में कार्सिनोसिन है। इसको आप समझो। इंडिपेंडेंस में नाइट्रम कार्ब नहीं है, डिग्निफाइड में नाइट्रम कार्ब है। इंडिपेंडेंट में कैजापुटम नहीं है, डिग्निफाइड में कैजापुटम है। ये डिल्यूजन डाइशीमस में रूटा है, इंडिपेंडेंट में रूटा नहीं है। इसीलिए हम लोग जो माइंड मेथड में सो कॉल्ड लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि हम उसके इर्द गिर्द की उसकी असल फीलिंग को जानने की कोशिश नहीं करते। और डिग्निफाइड बंदा बताएगा नहीं कि वो डिग्निफाइड है। ये आपको समझना है कि यार ये बंदा डिग्निफाइड है, या आपको ये समझना है कि वो बोलते कि सर खुद के बल पे रहो, तो अरे हाँ ठीक है, तो क्यों आप पूछिए, या फिर क्यों जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि व्हाई इज दिस पेशेंट सेइंग दैट ही शुड बी एबल टू डू ऑन हिज ओन। और एक बहुत क्लोज रूब्रिक है, कोई बताएगा इसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए? हेलो, एक है फियर बर्डन ऑफ बिकमिंग, है ना, क्यूप्रम मेट में है, राइट ना? और एक है क्यूप्रम मेट में है ना वो, कि मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, है ना? ये एक होता है। लेकिन और एक रीजन है व्हाई दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। आपके पास कोई पेशेंट ऐसा बोलता है कि सर कोई किसी की कब तक मदद करेगा ना, और क्यों करे, बच्चे अपने अपने काम में रहते हैं, ये कई बार काम में नहीं भी रहे। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार, हेलो, हाँ बोलिए। एक चीज ये होती है कि पेशेंट बोलते हैं कि सर कोई किसी की मदद क्यों करे ना, अब ठीक है ना, मैं बाप हूं तो क्या हुआ यार, उन्होंने थोड़ी ठेका लेके रखा है कि बाप की सेवा में उनका जिंदगी चली जाए। उनको अपनी जिंदगी जीने का हक है, कोई अपने लिए क्यों किसी का वक्त जाया करे, सही भी है ना? क्योंकि कोई पेशेंट खुद सैक्रिफाइस कर चुका होता है अपना जीवन। सर मैंने किया, मेरे माँ बाप का किया इसलिए कि मुझे पुण्य चाहिए था और मुझे आनंद मिल रहा था, लेकिन मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सबको आनंद मिले। सही बात है ना? हर किसी का आनंद का तरीका अलग है, हर किसी के पुण्य कमाने का तरीका अलग है। और कोई क्या जरूरी, पुण्य कमाना भी इतना थोड़ी ना जरूरी है। आप पाप मत करो, बहुत हो गया, पुण्य कमाने की क्या जरूरत है? हेलो, आप समझ रहे हो? लोग बोल रहे पुण्य पुण्य मिलेगा, अरे भैया पुण्य की जरूरत क्यों है, पाप ही मत करो। हेलो, आर यू गेटिंग मी? हेलो, बहुत बढ़िया। Yes, यस सर, यस Yes, सर। sir. Yes. दिस इज फिलोसॉफी एबिलिटी फॉर। और एक चीज होती है, लोग बोलते हैं कि क्यों सर सब तो मिलेगा। मैं अभी एक बंदे को पूछा था, मिला कि भाई आपके तो सब नौकर चाकर ये वो, हाँ डॉक्टर साहब लेकिन सब देंगे, लेकिन खाना तो मुंह में डालना है ना, मुंह भी तो चबाने के लायक रहे। यार मैं बोला यार ये तो बाप है, मुझे लगता था कि मैं ही हाजिर जवाब हूँ, बट आई वाज लाइक माय गॉड, व्हाट अ पर्सन। तो मेरा भैया, मेरे को आपके साथ में बैठना है, आप समझ रहे हो? आई सेड आई वांट टू हैव अ डिनर विद यू, आई वांट टू seriously I want to sit with you, have a and really talk with you. बोला यार I want to have a peg with you man, you were such a person. हेलो, समझ रहे हो ना आप? तो इसका क्या रूब्रिक आएगा? रीजन पावर इंक्रीज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थ्रू थोड़ा टेलिंग ज्यादा प्लेन। होगा। नहीं बेटा, दिस इज सिंपल ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। भाई मंजूर है ना यार? सर बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि सर ठीक है बाकी कमाने का इसका उसका छोड़ो, लेकिन अपने टॉयलेट, पेशाब, खाना खा सको इतना तो मैं हूँ ना, इतना तो अपना खुद में ताकत रहनी चाहिए ना, इतना तो अपने हाथ पैर चलने चाहिए ना। बोलते हैं ना कई लोग आपको कि सर मैं अपना टॉयलेट, बाथरूम, स्नान, खान पान, कपड़े लत्ते खुद पहन सकूं, सही है? दिस इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। So the close rubrics which I have found to independence are dignified, fear humiliation, delusion die she must, fear of becoming burden, objective reasonable,
फिलोसॉफी एबिलिटी, रीजन पावर इंक्रीज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस। ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंस इतना, क्योंकि हर बंदे का ये होता है ना कि वो खुद के बलबूते पे चले, खुद के एनर्जी पे वो चल पाए। तो ये तो अपन देखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस रहे उसमें। रीजन पावर इंक्रीज में क्या हो जाता है ना, कोई बंदा एक आम आदमी से ज्यादा रीजन दे सके। ओके, वो होता है रीजन पावर इंक्रीज। तो इंडिपेंडेंस में रीजन पावर इंक्रीज नहीं आता है ज्यादातर, आई हैव सीन। ओके, वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के साथ साथ कई बार मिलता है अपने को। जैसे एक होता है और एक रूब्रिक मुझे इंडिपेंडेंस के लिए मिला हुआ है, वो है मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर, है ना, कि वो कैलकुलेशन कर पाता है ना जीवन के, और वो कैलकुलेशन करके वो मैथमेटिकली ही कैलकुलेट्स कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, सर मेरी बीवी ही है जो मेरी सेवा करती है, और कल को उसको कुछ हो गया तो फिर क्या करूंगा मैं, तो इज राइट। और फिर वो बोलता है कि सर बेटा तो मेरा ऐसा है, मतलब दे कैन कैलकुलेट बिटवीन द रिलेशनशिप्स वेरी वेल, सो दे हैव proper understanding ki they know the pros and cons, positives and negatives of every relation and everything. सर मेरी पेंशन है 20,000 है ना, या 10,000, अब 10,000 है सर, अभी कैसे हो पाएगा उसके अंदर ना सब कुछ। इसके लिए खुद के पैर चलना जरूरी है सर, हाथ पैर चलना जरूरी है। तो दिस इज सिंपली, दिस कैन बी मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर्म। ओके, बट ज्यादातर मैंने देखा है डिग्निफाइड, फियर ह्यूमिलिएशन। फियर ह्यूमिलिएशन आई हैव सीन वेरी मच। क्यों बोल रहा हूं मैं बताइए, क्योंकि आर्थराइटिस ऐसे ही लोगों को होता है कि इनमें ज्यादातर ये अंदर वाली जो फीलिंग होती है ना, हर्ट होने वाली, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली, ये चीजें ज्यादातर ऐसे लोगों में होती है। एक, और उनकी फ्रीडम जहां पर कम हो रही है, उनकी फाइन मूवमेंट्स की या उनकी मूवमेंट की एबिलिटी कम कम होते जाती है। तो ऐसे लोग एक तो मोबाइल रहना चाहते हैं, एम्बुलेटरी रहना चाहते हैं, है ना, उन्हीं को रिस्ट्रिक्शन जाता है। आप देखो ना कि टेनिस एल्बो किसको ज्यादा होता है, टेनिस एल्बो, ये बीमारी कौन से स्पोर्ट्स वालों को ज्यादा होती है बताइए। जो बहुत ज्यादा खेलते हैं। हाँ, लेकिन कौन सा खेल? क्रिकेट। नहीं स्क्वॉश, जी, नहीं, नाम क्या है? टेनिस। लॉन्ग टेनिस। सर लॉन टेनिस, लॉन टेनिस टेनिस, प्लेयर को एग्जैक्टली, लॉन टेनिस में, समझ रहे हो ना, जिसके अंदर आपका एल्बो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो आपकी उंगलियां अगर से बंद हो रही है, उंगलियां अगर सिकुड़ रही है, तो उंगलियों से लेकर के जिनका काम ज्यादा चलता है, ऐसे ही लोगों में, या जिनकी सोच है कि मेरी उंगलियां चलती रहनी चाहिए, तो उंगलियां कौन से कामों में चलती है? किचन में चलती है, पेंटिंग में चलती है, सुइंग में चलती है, सर्जरी में चलती है, ड्राइविंग में चलती है ना, तो स्लाइसिंग वगैरह, मतलब वही तो उसी में। या फिर आप मैकेनिक हो, आप प्लम्बर हो, हेलो, आप देखो, तो ऐसे ही लोगों में ये आएगा ज्यादा। आप अगर उसको अच्छे से देखोगे ना, तो उनमें ही ज्यादा आएगा जिनमें इन उंगलियों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, या जिनके दिमाग में होता है उंगलियों का इस्तेमाल का ज्यादा। अब देखो गृहिणियों में, हाउस सर वाइफ में, राइटर भी हो सकता ना, राइटर। एग्जैक्टली, राइटर ऑल्सो आई एम सेइंग ना, यस, टाइप राइटर, टाइपिस्ट, वही तो, क्लार्क है। आप जो जोड़ लो ना बेटा उसके, इसीलिए तो राइटर्स क्रैम्प कहा गया है, अगर आपने देखा होगा, है ना, अर्जेंटम मेटालिकम जो अपने लिए फेमस है ना, राइटर्स क्रैम्प के लिए, है ना, अर्जेंटम मेटालिकम भी। तो ये बहुत बड़े ओरेटर्स होते हैं ना, बड़े बड़े स्पीचेस, तो पहले आपको स्पीच लिखना है ना, हेलो, ये क्लर्जीमैन्स होते हैं ना अर्जेंटम, तो इसीलिए उनमें राइटर्स क्रैम्प। क्यूपरमेट में भी देखो आपको ज्यादा मिलेगा, ऑफिसर होता है, इसको बड़े बड़े लोगों को एड्रेस करना होता है, इसके लिए उनको राइटर्स क्रैम्प ज्यादातर आते हैं, उसमें ज्यादा लिखा है। तो आपका प्रोफेशन या आपके जहन में वो जो काम है, वो काम आपका जिसका चलता है ना, ऐसे ही लोगों में आपको ज्यादातर ये मिलेगा। ट्रैकर्स में आपको नी का ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगा,
या जिनके मन में है कि मैं बहुत जिंदगी के बहुत पहाड़ चढ़ूं, जरूरी नहीं कि वो ट्रेकिंग वाला पहाड़ चढ़ना, लेकिन आप देखोगे कि नी प्रॉब्लम वाला बंदा बहुत चढ़ रहा है जिंदगी में या बहुत चल रहा है जहां पर नी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लोग बोलते हैं ना कि इसके घुटने घिस गए काम कर कर, कमर टूट गई काम कर करके, ये वर्ड्स आप सुनो ना, कमर टूट गई इनका संसार करते करते, ऐसा आपने सुना है ना औरतों के मुंह से कि इनका संसार करते करते कमर टूट गई। अब देखो उनमें ही आपको ज्यादातर फिर औरतें आपके पास में आएंगी, सर मैंने सिजेरियन सेक्शन किया था और वो क्या बोलते हैं एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और वहां से हो रहा है, उससे थोड़ी ना होता है वो। वन प्रिक विल नॉट कॉज, वहां पर आप हाइपरिकम मत दो, पिन पॉइंट इंजरी वगैरह, वो थोड़ी ना होता है। वो तो हो चुका, वो कब का इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया, उसका डिजेनरेशन हो गया, बराबर ना। तो पिन पॉइंट इंजरी अलग होती है, चुभने वाली बात कह दी उसने सर, इतनी चुभा दी सर उसके बाद में मेरे को, इतनी चुभा दिया उसके बाद, इतनी चुभ गई सर, बहुत गहरा घाव करके चली गई, वो हो गया आपका पिन पॉइंट इंजरी। और सर ये ऐसे है कि इनकी हर बात में नश्तर होता है, उसको ले लो आप सिलिशा वाला, स्टेफिस एग्रिया वाले बोलते हैं ना इनकी बातें जैसे नश्तर की तरह चलती है, सुने हो ना आपने ऐसे अल्फाज लोग, इनकी बातें नश्तर की तरह होती है। नश्तर मतलब क्या, स्कैल्पेल कट कर दिया, वो स्टेफिस एग्रिया है ना, इसलिए तो स्टेफिस एग्रिया यूज करते हैं ना कि वो कौन से इसमें यूज करते हैं, शार्प ब्लेड की इंजरी में स्टेफिस एग्रिया, सिलिशा और कौन सी ज्यादातर स्टेफ ही आती है ना उस। हेलो, और पहले ही सर मैं इतना दुखी हूँ, इतना गमगीन हूँ, इतनी घाव जीवन में पड़े, उस पर ये ऐसी नस्तर चलाते बातों में, फिर आएगा सिलिशिया, क्योंकि उसके मन में फोड़ा है। हेलो, जो सिलिशिया हम लोग पस वाला नासूर बोलते हैं, पुराना वुंड बोलते हैं ना, घाव जिसमें पस है और नश्तर मार रहा है उस पर, तभी तो हम बोलते हैं ना कि सर्जन्स ब्लेड, सर्जन्स नाइफ। अबे सर्जन्स नाइफ मतलब वो उसको उस तरीके से लो। हेलो, वो सर्जन्स नाइफ कब बोला गया है, 200 साल पहले, 300 साल पहले, where the allopaths, the homeopathic doctors had to prove that yes, we actually can take care of the what is that, boils and the pustules and the wounds with pus, है ना। So it was the then actually they had to prove to the allopaths. Now we don't need to prove to the allopaths, right? Because Dr. Hahnemann was trying to convert homeopaths into allopaths into homeopathy. So he had to prove कि भाई my medicine is working on enteric fever, on ague, on cholera. That is why he has written na, trials of cholera, trials of diarrhea, trials of burning, trials of pain, neuralgia, and all these things. Because that area, it was the time of conversion. Hello, समझ रहे ना? He was converting allopathy to homeopathy. That is why they were telling more on the physicals and the diseases. Now we have to go beyond and go deeper and understand. Then Dr. Kent was trying to explain how psyche is more important, how mind is more important, how mind is first disturbed and then the body is. Though Dr. Hahnemann also said, but that was in the later years of his life. If you see Dr. Hahnemann's writings from the day he discovered homeopathy, the day he introduced homeopathy to the world, and then before his so-called death, you see the changes in his writing. It's not that he was not aware of things, but it was planning that he had to make. कि भाई मैं ये अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, ये बाद में, फिर ये बाद में, जैसे जैसे इट वाज जस्ट द सेम थिंग ना। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको अलग होता है, सेकंड ईयर में आप अलग समझते हो, तो थर्ड ईयर में आप अलग समझते हो, पीजी में आप अलग समझते हो। वो उस तरीके से डॉक्टर हनुमान साहब ने, डॉक्टर केंट साहब ने, डॉक्टर हियरिंग साहब ने, इन लोगों ने जो चीजों को टुवर्ड्स माइंड ज्यादा लेकर गए धीरे धीरे, द रीजन वाज दैट now we don't have to convince anybody. It is that now the time is there, we have to explain to the homeopaths now why mind is important. They're still stuck with the 300 years thing. Are you getting me? This is how it came. इसीलिए आपको वो पहले दिया रहता ना कि where the remedy is indicated. जैसे एलोपैथी के आप देखोगे ना, तो उसके अंदर इंडिकेशन वैसे ही दिए रहते हैं कि ये this is indicated in typhoid, this. That is why Dr. Clark has written always. Dr. Kane sir also has written this is indicated in typhoid like state, this. So that the allopaths
see कि अरे हाँ, okay, these are the, then in typhoid what are the indications? That is why physical indications were more important those days. Now they won't be, because you will not get those type of symptoms now in typhoid. Okay, they are pretty much modified because of lots of things, because of the miasm, because of allopathic medicine, ayurvedic medicines, wrong homeopathic medicines, the formulas, है ना, वो बड़े बड़े बॉस लोग बनाते हैं फॉर्मूला 14 16 नंबर के, उसके वजह से अपने पास में फैब्रिकेटेड केसेस आएंगे. That is why we try to go behind and try to understand as to where the disturbance started and what delusion the patient is living with and what is the main point, main aspect of his life that is being affected. All right, I hope I am not boring you people by not talking the rubrics and all. Okay, anything else now? Hello, now we are talking, let's talk about the freedom, है ना. अच्छा, okay, one more thing, can anybody tell about dependence? Hello, what does dependence means to you? What does dependence means to you? Rely on someone for your work. रिलाई में रिलायबिलिटी का सवाल आता है ना बेटा, भरोसे का सवाल आता है. रिलायबिलिटी के अंदर भरोसा आता है ना. wants a support सपोर्ट के अंदर खुद की भी तो ताकत होती है. Help for held help. desire held desire किसी के ऊपर निर्भर हो जाना. डिपेंडेंस का मतलब बताइए, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का मतलब बताइए. Ask for help, sir. द पर्सन, हिंदी में बताओ ना, व्हाट इज डिपेंडेंस. डिपेंडेंस यानी वो अपने खुद जो काम है आप खुद नहीं कर सकता, वो उसके लिए दूसरे की मदद चाहिए. मदद खुद नहीं कर सकता. ओके, सर किसी के ऊपर निर्भर रहना. निर्भर रहना, एग्जैक्टली. पर निर्भरता की क्या मतलब है बताइए ना. सर इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स. इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए, फिजिकली आप कहीं प्रॉब्लम हो गए. You actually started with the answer. You know what? You said it depends on different things. Yes sir. Understood? Yes sir. How you started, it depends on different things. Yes sir. So Yes, dependence has, you are very right, dependence has lots of criteria. Criteria. है ना. You Yes. can be emotionally dependent on others. You can be financially dependent on others. You can be socially dependent on others. Right? Yes sir. You can be economically dependent on others. You can be physically dependent on others. You can have the dependence on someone as a subordinate because you do not have the courage or you cannot say certain things, right? जैसे कि a female, जैसे being a male doctor, I am dependent on my female counterpart or even my assistant, even my compounder for the sake, because I cannot examine a female doctor, female patient, right, without her presence. So this is also dependence, right? So now in arthritic patients, they are dependent on others, right? But how do they handle their dependence? Okay, that will tell कि ये बंदे के IPR कैसा है, how is handling his dependence. Okay, this will tell how is his IPR, then, and it will tell you what type of person he is, where is he compromising, and how is he getting it done, right? Hello, this will tell the how of the patient. Okay, ये कैसे अपनी चीजों को करा ले रहा है जहां जहां पर ये डिपेंडेंट है, या एक तो ये है कि छोड़ दे रहा है कि आप करो, है ना, या फिर आप समझो. अगर उस बात से ये हर्ट हो रहा है कि इनको 10 बार आवाज देनी पड़ती है सर, हम तो ऐसे थे,
कि एक बात में दौड़ के आते थे। सुनते हैं ना आप लोग? तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि इसका आईपीआर कैसा है, एक, इसका आईपीआर के साथ में रिश्ता कैसा है, दो, और ये बंदा किस टाइप का है, तीन। अंडरस्टूड? These are the three things you will understand only simply by understanding the dependence. Are you getting me? इतना सिंपल है कि how easy black तो बड़ा ना, okay. Are you getting me? तो इतना सिंपल है कि हम लोग बोलते हैं ना, how are you handling yourself? तो आप सिंपली बोलो कि आप, ये अभी आपसे काम नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करते हो, आप ये काम कैसे करा के लेते हो। बहुत सिंपल है। हर किसी को आप बोलो, जैसे हम लोग पूछते हैं, अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग पूछते हैं ना कि सर आपका, आपके सबऑर्डिनेट से काम करा के लेने का तरीका कैसा है, आपका लोगों के साथ काम करा के लेने का तरीका कैसा है। ये सवाल आप जरूर पूछा करो। आप किस तरह से खाना मांगते हो, आप होटल में किस तरह से खाना मांगते हो, आप बीवी से किस तरह से खाना मांगते हो, आप बेटी से किस तरह से मांगते हो, आप माँ से किस तरह से खाना मांगते हो। ये भी आपने पूछ लिया ना तो भी आपको पता चलता है। आप अपने बेटे से किस तरह से खाना मांगते हो, बस 5 लोगों से पूछो, एक वेटर से, बेटा, बेटी, माँ और बीवी या हस्बैंड जो भी है, तो भी आपको, यू गेट द एंट्री टू द पर्सन। व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग his dependence. So remember, if the disease is going to affect his dependence, independence, in the things he's getting dependent on others, you have to ask, how are you getting your things done? Simple. Okay, that will tell the type of the person and how is he getting it done. ठीक है? This will tell कि ये बंदा morally कितना अच्छा है, इसके अंदर कॉन्शियस कितना है, ये बंदा ग्रेटफुल कितना है, ये बंदा अनग्रेटफुल कितना है, ये बंदा प्रिजम्पशस कितना है कि उनका काम है उन्हें करना चाहिए, ये बंदा अब्यूजिव कितना है। हेलो, आर यू गेटिंग मी? सो case taking is not something very, it's not a rocket science. Remember that. It's very simple thing. What I'm trying to tell through this two rheumatic arthritis lecture is that you have to be a very common person. That's it, which everybody has been speaking, right from Dr. Hanuman to the next more generation that will be spoken. Simply just be a simple person. That will lead you to the remedy. Well, okay. Anything else that is remaining now? What other thing that I am supposed to speak in arthritis? Hello? How do you handle acute cases and how do you handle chronic cases? Right? And one more very important thing which I want to tell in arthritis is, in cases, if you see any remedy, which I always tell, especially in cases where disease is affecting your genetic makeup, disease is affecting you as a whole, the disease is affecting the quality of your life, then majority of the times, my experience is solo remedy doesn't come. Rarely, of course, calcarea come and these are strong remedies, but try to find out whether it is calcarea, if it is calcarea, whether it is calcarea phos, whether it is calcarea fluor, whether it is calcarea iode, whether it is calcarea sulf, whether it is calcarea muriaticum, same holds with natrum, silicia, whatever. So just see, वो भी एक बार आप जरूर देखा करो, वो बहुत important है. Now if the patient seems like Nakswamika,
तो एज वे आई ऑलवेज टेल सी द फैमिली ऑफ नक्सवामिका, जिसके अंदर इग्निशिया भी है, जिसके अंदर अदर रेमेडीज भी है, तो स्टडी द फैमिली ऑफ द रेमेडीज. Many times the case seems like Naxomica, turns out to be Ignatia. Many times case seems like Ignatia, turns out to be Naxomica. Case seems like Pulsatilla, turns out to be Aconite. Case seems like Lachesis, turns out to be Crotalus horridus. To see the family of the remedies, please, instead of changing the remedies and experimenting and failing and suffering from the guilt, one thing you must do this. Your case taking understanding of the case will take 5 minutes max, not more than 10 minutes. For a person who's practicing on mind, shouldn't take more than 10 minutes. Okay, बहुत ज्यादा लेवरेज लेना है तो 15 मिनट, लेकिन उसके बाद वाला जो उसका इंट्रोस्पेक्शन रहेगा, जो स्टडी रहेगा, वो ये रहेगा कि भाई ये पल्सटिला है, तो क्या ये पल्सटिला का भाई है एकोनाइट, या उसका स्टेफिस एग्रिया की तरफ जा रहा है. इग्नेशिया है तो क्या ये क्यूरारी की तरफ जा रही है. जो भी है उसके फैमिली में जो भी है. रस्टॉक्स है तो क्या ये रस वेरेनाटा है, रस क्लैब्रा है, या मैंजीफेरा इंडिका है. हेलो, ये चीजों की तरफ आप जरूर जाओ. ओके, अगेन one more homework I want to give you people is the diseases which are going to cause stiffness. Please say the remedies. Please go to the rubric generalities and see stiffness. Okay, उसमें जो रेमेडीज आ रही है एक दूसरा, those remedies surely are indicated that where people have tendency to be stiff, okay, in their life. Because if you're not stiff here, if you are flexible here, I tell you your body will be flexible. If you're stiff bloody here, then you will suffer from diseases which are going to make you stiff. So other way around also, which Dr. Bonninghausen has said, particular to general, general to particular. Particular to general का मतलब ये नहीं कि आप पस देख के फिर उसको सिलिशिया दो. नो, पाम्स में स्वेट है तो कैलकेरिया दो या सिलिशिया दो. नो, पर्टिकुलर का मतलब ये है कि जो डिजीज आपको हो रही है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर से वो बंदे के माइंड में जाने की कोशिश करो, और उसको स्टिफ बनने की मजबूरी क्या है. ऑफ कोर्स प्लीज रिमेंबर कि देयर आर टू रीजंस व्हाई वन इज व्हाट ही इज. वन इज बाय चॉइस, another is by compulsion. Okay, one is by choice, another is by compulsion. वो है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. I always, if a person is coming to be with adultery, I always try to see why has he become adulterous, where exactly the problem is. Okay, so it can be simply the morally thing कि okay भाई बाप दादा से इनका बिजनेस ऐसा है. Okay, then you can think of remedies like medorenum, syphilinum, thuja, Phyratrem album, acid floor with no morals. Okay, then you can think of those remedies on that line. Okay, or to try to find out why the person is that way. Why has he landed in arthritis? Okay, कहां पर इसके जीवन में इसको जॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है. ओके, जॉइंट्स की जरूरत इसको कहां पर पड़ रही है, कहां पड़ रही थी. आर यू गेटिंग मी? ये कौन से रिश्ते हैं जिनको ये बांध के रखना चाहता था. सांधा ना, जॉइंट मतलब जॉइंट करना ना, कि कहां पर इसका जॉइंट इसका टूट रहा है. कौन से रिश्तों को बांध के रखने की कोशिश कर रहा था, कौन से जो कड़ियों को बांध के रखने की कोशिश कर रहा था. कहां पर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी 90 डिग्री से, कहां पर ये 360 डिग्री घूमना चाहता था. जैसे सभी दरवाजे 360 डिग्री नहीं खुलते हैं. बताइए कौन सा जॉइंट है जो 360 डिग्री घूमता है. तो 360 डिग्री घूमने वाला जॉइंट अगर इसका गड़बड़ कर रहा है तो ये बंदा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें भी इसको अड़चन आ रही है. तो कौन सा एस्पेक्ट इसका है. क्या इसकी बेटी ने कि मतलब ये एकदम कट्टर कोई भी कास्ट है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है,
क्या कहते हैं उसको, राजपूत है, जो भी है, और इसकी बेटी टोटली अपोजिट कास्ट में शादी कर रही है, या टोटली अलग इसको पैराडिम शिफ्ट लेना पड़ रहा है। जैसे कि एक बंदा मान लो कि ऐसी पार्टी में कि जो टोटली ये है, क्या कहते हैं उसको, फैनेटिक है, और ये इसको टोटली लिबरल पार्टी में जाना पड़ रहा है, या लिबरल को उधर जाना पड़ रहा है। तो इसका कहाँ पर इसका रोटेशन मूवमेंट ये नहीं हो रहा है। हेलो, दिस इज एनालिसिस जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल इज व्हाट डॉक्टर बोर्निंगहाउसन सर हैड टॉट अस। उसको इस तरीके से हमने समझने की कोशिश करना है। Now let's talk about handling acute and chronic. How do you people handle acute attacks? Can anybody tell me? Anybody? Hello? Are you there, guys? Am I audible? Yes, sir. Tell me. एक्यूट में रिपीटेशन ज्यादा करना। हाँ, repetition. सर एक्यूट में रिएक्शन देखनी पड़ेगी। हाँ, सर एक्यूट में रिएक्शन देखनी पड़ेगी, अगर से इसको स्ट्रेसनेस आ रही है तो इसके उस दौरान रिएक्शन क्या रहेगी? नहीं सुनाई दिया बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही, माफ करना, फिर से बोलेगा आप? सर स्ट्रेसनेस के अंदर उसकी रिएक्शन क्या है? अगर उसको पेन हो रहा है, स्ट्रेसनेस हो रही है, तो उसकी रिएक्शन क्या है? उस रिएक्शन के आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओके ओके, मतलब हाउ पे आपका मतलब है ना? सर हाउ, ओके। सर अक्यूट में सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कॉजेशन क्या है उस वक्त उसको होने का, उसके बाद में वो कैसा। कॉजेशन या एक्साइटिंग फैक्टर बेटा? yes sir, ये बहुत exciting factor problematic होता because है। yes exciting Main factor things because आप he is समझो। having, he already has that pain, but why it has increased during that time, so it is exciting and See- maintaining factors. See, I tell you what बेटा, आप सही जा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, there is nothing like acute, please remember. acute अगर आया है तो इसका मतलब अंदर सालों से चीजें चल रही है, अब ये बाहर आया है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसीज है, प्लीज रिमेम्बर। Because this patient had disposition towards this disease, that is why It the has been acute triggered. attack, है ना? भले उसको हिस्ट्री ना हो, भले उसके फैमिली में हिस्ट्री ना हो, आप समझ रहे हो, पर इसका पाइलअप हो रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट रूमेटिक आर्थराइटिस पर से, या इवन इन अंजाइना, आई एम टेलिंग यू, इसका पाइलअप पहले हुआ है। अब ऐसा हुआ ना कि अब उस पर आखिरी घाव पड़ा और ये ब्रेक का पॉइंट होता है। तो अक्यूट डिसीज ऑफ सर्टेन ऑफ दिस टाइप, लाइक स्पेशली लाइक रूमेटिक आर्थराइटिस, और ये पेशेंट का ब्रेक पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं ना उसको, कि ये अब टूटने वाला है। जैसे अभी ये इतना बड़ा है और इसको तोड़ते 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 आप इस पॉइंट पे लेकर आ गए ना, यहाँ टूटने वाला है ये। हेलो, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पे टूटने वाला है, या इसके इतने सेंसिटिव पॉइंट पर लग गया है कि ये टूट गया है। दो चीजें, एक ये टूटता गया और अभी टूट गया है, और एक दूसरा कि जो उसका एकदम सेंसिटिव पॉइंट है वहां पर लग गया है। समझ रहे हो? जैसे Yes, sir. किसी को माँ पर से गाली दे तो वो पागल हो जाता है ना, भले वो दोस्त ने भी दे दिया कभी तो फिर वो उसके सटक जाता है। हेलो, एक, और दूसरा कि वो टूट रहा है, अपने आप को उसने संभाल के रखा हो, और अभी वो है ना, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, है ना, जहां राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है। मतलब वो ऐसे पॉइंट पे आ गया कि भाई अब आम होना है, अब टूटना है, तो उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश, और उस पॉइंट से आप उसको क्वेश्चन करो सीधा। तो उसके लिए क्या सवाल पूछोगे आप पेशेंट से? हेलो, ऐसे क्या बात हुई जो अब भी आपको ये दर्द शुरू हुआ? नहीं, इतना स्पेसिफिक मत पूछो। नेट्रम नहीं बताएगा जल्दी आप, नेट्रम कार्ब नहीं बताएगा जल्दी आप,
डिग्निफाइड वाले आपसे छुपाएंगे, सिक्योरिटी वाले छुपाएंगे। सिर्फ ये पूछना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा था पिछले 7-8 दिन में, 1 आध महीने में आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। ठीक है, जो भी हो सर, अच्छी बुरी सब बातें बताइए। अच्छी बुरी, ये अच्छा शब्द जरूर डालो। अच्छी बुरी बातें क्या हुई सब बताइए। ठीक है, सिंपल। और फिर उस पर से आपको वो पॉइंट पता चलेगा। ओके, एक। दूसरा, उसको पूछिए आपके जीवन की प्रायोरिटीज क्या है, आप जीवन में कौन सी चीज को सबसे ज्यादा, या कौन सी चीजें आपको मायने रखती है। फिर वो जब वो चीजें बताएगा ना कि भाई मेरे लिए मेरी बेटी मायने रखती है, मेरा बेटा मायने रखता है, मेरी माँ मायने रखती है, ये मायने रखता है, फिर इसमें से इनमें से किसको कुछ डिस्टर्बेंस है कैसे। ओके, दिस इज इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द थिंग्स that are of utmost priority to you, or what are the things that you give priority to. If he says कि my career, all right, what in career? फिर बोलता नहीं सर, करियर में तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे को घर पे डब्बा नहीं मिलता है, मेरे को, या फिर मेरी माँ बीमार रही थी तो मुझे बार बार उधर जाना पड़ता है, या फिर मैं घर में बड़ा हूँ, या सर फिर क्या होता है ना कि मुझे शादियों में भी जाना पड़ता है, 10वें में भी जाना पड़ता है, 20वें में भी जाना पड़ता है, जो होता है ना, जो रिचुअल्स होते हैं डेथ के बाद में, तो उसमें मुझे, मतलब मुझे कोई नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं करने वाला, होके भी नहीं होने जैसे है। समझ रहे हो? तो फिर उन मुद्दों पर आप जा सकते हो। एक। दूसरा, हाउ विल यू हैंडल द अक्यूट। हाउ विल यू हैंडल द अक्यूट। Acute over chronic and pure acute. Let's talk about both. Acute over chronic and जो so called acute over chronic अपने बोलते हैं अपन, जो सूडो सोरा जिसको अपन बोलते हैं ना, acute over chronic, और एक acute एकदम बाप सडनली आ गया। बोलिए, आप लोग बोलिए। सर अक्यूट केसेस में बेसिकली एक तो पेशेंट की वाइटलिटी देखनी पड़ती है, उसका एज फैक्टर, उसकी वाइटलिटी, और अगर मेंटली बहुत स्ट्रांग वगैरह है तो वहाँ पे हाई पोटेंसी एंड रिपीटेशन देना पड़ता है। और अगर नहीं है और थोड़ा सा डिप्रेस जैसा रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक यानी 30 पोटेंसी और रिपीटेशन, ऐसा आगे जाना पड़ता है। सर एलएम पोटेंसी मेंटली स्ट्रांग मतलब क्या बेटा? सर जब हाइपर रहेगा यानी गुस्से वाला बंदा है, बहुत रिएक्ट करता है, अगर एंड रिएक्टिव है तो फिर हाइपोटेंसी से ज्यादा रिएक्ट करने का डर हो जाएगा ना। समझ रहे हो? आप उल्टा बोल रहे हो। सर एलएम पोटेंसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। Are you getting me? यस सर। So you are telling the opposite. Trust me, I tell you, if the patient is in utter pain and if there is inflammation and things, take it as a word from me, use LM potency in very frequent repetition. Very frequent repetitions. You can give it almost every hourly. Or if the patient is, your patient going on, supposing the patient is on Natromur 200, last potency was 200, then try and give Natromur 200 in water dose. In water dose. Okay, if you don't have LM potency or if the patient is on that, then give water dose of the potency that you have given, but shift him to LM potency then after that. I have found LM potency to be most useful in such cases. Okay, 50 millisecond potency. Okay, if you want to know how it is, like how to give that, it is there in on my Insta handle, Homeopathy 24/7. You can go and check how to give LM potency. I have explained there. Okay.
Sir, how is minimum time in LM potency? 1 घंटा या उसके कम से भी दे सकते हैं? 1 घंटा is okay because rheumatic arthritis कोई लाइफ सेविंग मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है नहीं, तो 10-10 मिनट से देने में कुछ मतलब नहीं है। हम लोग 10-10 मिनट से कहाँ देते हैं? अगर हार्ट अटैक है ना, हाँ, तब हम 10-10 मिनट से देते हैं। मान लो कि नहीं। अंजाना में है तो माय डोसेस आर 30 every hour, every 10 minutes और इवन LM potency every 10 minutes। और LM चूंकि 1 चम्मच पानी में देना पड़ता है, 30 का यू कैन गिव 1 ड्रॉप, तो आई गिव अंजाना में मैं 10-10 मिनट मतलब मैं देता हूँ। मेनी टाइम्स आई हैव गिवन इवन 10 ml। अभी लास्ट 2 months back only, not even 2 months, 1.5 months back, my very close friend who was on Veratrum from before, he came with angina. Typical ECG was also like going to be, changes were there. So I had given him Veratrum album 10 ml and his BP also had dropped down, and I had given him every 10 minutes that time. And with the grace of God, angina, matlab, everything came out to be absolutely nil, even though there were changes in the ECG. Even though T wave आ गई थी, कुछ नहीं, no blockage, nothing at all, clean. तो इन दैट लाइफ सेविंग में ही 10-10 मिनट से दो, बेटर है कि आप आर्ली दो, क्योंकि रोमेटिक आर्थराइटिस में इतना पेन में आपके पास में नहीं आएगा कि जो बोलेगा कि जो ठीक ही कर दो, फिर तो वो तो रुबिक आपके पास आ गया ना, इम्पेशंस पेन फ्रॉम द डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस, कैमोमिला है ना, वो तो फिर डायरेक्ट आपके पास में रेमेडी आ गई, कैमोमिला है ना। एंड क्रॉनिक के अंदर मैंने पहले ही बताया हूँ कि ऑटोइम्यून डिसीजेस क्रॉनिक में अगर है जिसमें डिसेबिलिटीज नहीं है, जिसमें स्टिफनेस वगैरह नहीं डेवलप हुआ है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में अब ये नहीं हुआ है, नहीं, जैसे कि अगर से एंकिलोजिंग हो चुका है तो देन LM इज द बेस्ट वन। अगर एंकिलोजिंग नहीं हुआ है, अगर से जोड़ वगैरह टेढ़े मेढ़े नहीं हुए, अगर वो है लेकिन ANA स्ट्रांगली पॉजिटिव है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, तो देन 10 m 50 m से पेशेंट निकल जाता है। फिर LM में खेलते मत बैठो, बहुत टाइम निकल जाता है उसमें। 1 आध साल के अंदर तो पेशेंट आपका 6 महीने के अंदर तो आपका ANA वाला पेशेंट रिस्पॉन्ड करता ही बहुत अच्छे से। अगर आप 10 m तक पहुंच गए तो उसमें निकलता है। लेकिन अगर जॉइंट्स में डिसेबिलिटी है तो डेसिमल पोटेंसी, सेंटीसिमल पोटेंसी इस्तेमाल करने के बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, मजबूरी है, इफ यू डोंट हैव द मेडिसिन देन do give 30 and give water dose after that, but order LM potency and start with LM potency. Intercurrent remedies I have told you, carcinosin, cifalenum, medrolum, these are the remedies that I found very useful as intercurrent. In between, once or twice is required if there is a load, if the patient has that type of supposing इसमें है वो रॉन्ग सफर्ड इन चाइल्डहुड वगैरह, तो कार्सिनोसिन बीच में लगेगा, बट वो पेशेंट फिर अपने दूसरी रेमेडी पर आता है। आई हैव नॉट सीन कार्सिनोसिन क्योरिंग सोनली सच केसेस, nor I have seen medrolum curing solely such cases. No. Cifalenum also I have not seen curing such cases solely. I haven't seen. Especially diseases which are crippling you, especially diseases which are actually very deep down and autoimmune. Even though the patient might seem like cifalenum, cifalenum will take care of one aspect and then the patient will go to some other remedy, or even medrolum will take care of the this thing, but the patient might go to pulsatilla or some remedies like that. जैसे arsenic I have seen in my book also I have told कि arsenic if not treated goes towards cifalenum is what I have observed. Pulsatilla, Thuja, I have seen going towards medrolum very much. Okay, so these things are there, of course. So do keep in mind to think about a nosode. Surely to think about a nosode if there is a load from their past, like if the father was very adulterous. Okay, then do think about medrolum. If he was alcoholic, do think about cifalenum. Okay, if there is very strong history of cancer in the family or even psychiatric diseases, think about carcinosin to be introduced once at least in between
क्योंकि वो भी एक निकाल देता है कई बार, अगरचे बहुत ज्यादा यूटीआई का हिस्ट्री है, ओके, तो देन इवन मेड्रेनम यस टेक्स केयर ऑफ वेरी फास्ट एंड गाड़ी एकदम पटरी पर लेकर आता है और फिर आपको आपकी रेमेडी वापस आपकी बहुत अच्छे से निकाल देती है। बिकॉज ये कुछ डिसीजेस है जो माइजम कॉजिंग डिसीजेस है ना, जो डॉक्टर हैंडमैन ने बताया हुआ है कि जैसे गनोरिया है, सिफिलिस है, एक्जिमा, स्केबीज है, दीज आर माइजम कॉजिंग डिजीजेस, राइट। सपोजिंग गनोरिया हो चुका है तो मतलब उसके अंदर साइकोसिस आ चुका है, ये माइजम कॉजिंग डिजीज है। तो अगर किसी को गनोरिया हो चुका था तो श्योरली आपको मेड्रेनम लगने ही वाला है बीच में, remember that. Or if the person has that type of thing कि यार I have my wife and then I though happy with the wife and then he is adulterous, so that lust is there and then he wants to have illicit relation with some other lady, so then surely you can think about Medrenum as a remedy in between. Okay, that is the reason why it is not getting cured. Okay, वो एक halt पर आ जाता है ना, तो surely this is what I call mind method, is you should mind what you're doing, you should mind your business, is mind method. Please remember, mind method doesn't mean treating from rubrics from the mind. No, it is actually trying to treat the person, his morals, everything. Okay, so please remember that. Now final thing is, till when you are supposed to give the remedy and where you are supposed to stop, right? Can anybody tell कि कब तक आपको दवाई देनी है? And of course diet of course matter करता है, obesity is one of the main hurdles. You have to tell the patient to improve his lifestyle. Of course, if the patient is pretty much disabled, then you have to advise him to stop carbohydrates, give a high protein diet or whatever is required according to the pathology of the patient, so that the patient becomes loses weight. And then, because if the patient is a patient of 90 kg coming with knee joint pains, whatever you give, I tell you, he is not going to get totally relieved unless he comes down to 80 or 70. He might feel better, but that is one of the major obstacles to cure, which Dr. Hahnemann also has said that you have to take care of. And in the later part of Organon, which is very important, the climax of the Organon, Dr. Hahnemann has described about diet and regimen and relaxation and other things. So that you have to tell the patient to practice. Okay. So now till when are you going to give the remedy? Till when are you going to pull the patient? Tell me that. Till the concern of the patient is How? Sir, the medicine. Sir, the medicine. complaint of the patient. All right. No, till the pathology is getting reversed, one. And very simple thing, कि उसको जहाँ पर हाँ बोल सबसे मेडिसिन एग्रावेशन मेडिसिनल एग्रावेशन देखने को मिल जाए पेशेंट में, तो वो प्राइमरी एक्शन ऑफ रेमेडी हो जाएगा, तो सेकेंडरी वेट करना पड़ेगा। जहाँ पर आपको पेशेंट के रिवर्स पे जाना शुरू हो गया पेशेंट, ओके, उसके ओल्ड अगर वापस आने लगे हैं सिम्टम्स, तो डर मत जाइए कि वो बोलेगा सर ये पहले वाला प्रॉब्लम वापस आ गया, मेरे को डर लग रहा है अभी पहले जैसा ना हो जाए। तो तुरंत फिर आप फियर ऑडिल और वो क्या है डिल्यूजन फैंटम सीज ब्लैक और या फिर फियर पैनिक अटैक, ऐसा देख के रेमेडी मत दे देना प्लीज। या फिर सर बीमारी बढ़ गई फिर तुरंत हाइपोथैलेमस मत डाल देना कि डिल्यूजन बीइंग पॉइजन बाय मेडिसिन। डोंट डू दैट फुलिश थिंग, प्लीज रिमेंबर you have to stop. Seldom you will require, or if the patient is getting skin eruptions back, है ना, which is सबसे ज्यादा हमको क्या कहते हैं उसको खुश करने वाली चीज होती है ना, स्किन का प्रॉब्लम वापस आ जाए। और one more thing that I observed in rheumatic arthritic cases, especially if the patient has been taking lots of Ayurvedic lotions, potions, they suffer from herpes. Okay, they suffer from herpes zoster, and you are not supposed to treat that herpes zoster that time. Okay,
unless it is causing more trouble, unless it is going very close to the head, you are not supposed to treat herpes zoster then. Just give him SL, or if the remedy, whatever remedy is going on in LM potency, very infrequent repetitions, very, very, one or two maybe. You are not supposed to give herpes, you are not supposed to treat herpes zoster. Ask the patient if he had suffered from chickenpox. If he says no, you are supposed to welcome the herpes. If the remedy is right, if the patient is feeling generally better, he gets herpes. Please remember. Okay, remember this thing. It's very, very important. सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ। सर मेरे पास एक पेशेंट थी, उसको जब दवाई दी तो उसके मतलब हमें जो ओल्ड डिजीज आती है तो कितनी देर तक उनके लिए वेट करना चाहिए? जब तक कि पेशेंट को वो चीज से डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर पेशेंट जनरली अच्छा है और उसका प्रॉब्लम वापस आया है पुराना, तो फिर आप उसको डाइट के अंदर थोड़ा सा मेन ध्यान रखो, और दूसरा आप एसएल पे रखो उसको। सर अगर से पेशेंट बहुत ज्यादा नई मतलब पुरानी बीमारी को देख के बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे उसके दिक्कत कर रहा है, तो फिर सर तो क्या चेंज करनी पड़ेगी मेडिसिन? जो आपकी रेमेडी है उसको एलएम में आप एक डोज दे दो। मान लो कि पेशेंट आपका पल्सटीला है और वो डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर आर्सेनिक से जो बहुत पकाते हैं आपको लेके ये सब चीजों को। ज्यादातर आई हैव सीन आर्सेनिक पीपल, क्योंकि टॉकिंग बिजनेस वाले होते, ब्रायनिया होते हैं टॉकिंग बिजनेस वाले बहुत ज्यादा, कैंथरिस बहुत ज्यादा टॉकिंग बिजनेस वाला होता है, गाली गलौज पे आ जाता है कैंथरिस, है ना, वो ब्लास्फेमी वाला बोगस दवाई दी सर आपने, तो वो वाला कैंथरिस वाला अगर है तो फिर आपको उसको एलएम पे डालना पड़ता है एक दो बार, तो स्पीड अप हो जाती रिकवरी। ठीक है, अगर पेशेंट उससे डिस्टर्ब नहीं है बहुत ज्यादा, आपने रीएश्योर कर दिया, पेशेंट अगर रीएश्योर हो गया, अगर रीएश्योर नहीं हो रहा है तो आप एलएम दीजिए, अगर रीएश्योर होता है तो वेल एंड गुड रुक जाइए, बट ये नहीं कि उसका हार्ट का प्रॉब्लम वापस आना चाहिए, है ना, ये याद रखो कि भाई शुगर कम हो रही है और बीपी बढ़ रहा है तो वो मत करो, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ब्लड प्रेशर देन, राइट। हेलो, ये नहीं कि बीपी उसका 200/100 हो गया है, यू आर सेइंग कि ओल्ड सिम्टम्स कमिंग, नो। हाँ, उसके साथ अगर बीपी के साथ अगर पेशेंट को ब्लीडिंग, पीआर ब्लीडिंग चालू हो गया तो इट्स अ वेलकम साइन, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ इज टेकिंग केयर ऑफ द ब्लड प्रेशर। हेलो, आर यू गेटिंग मी? Body is letting the blood out from the natural orifices, which is good sign. Then you have to wait. Then don't treat the hypertension. Wait. All right, but it shouldn't cause him anemia. Not so much that he feels drained out. Even if he has bleeding, but he is not feeling weak after that, then it's a welcome sign. Okay, भाई तेरा बीपी डाउन हो रहा है, डोंट वरी। या फिर तुम्हारे पास हेडेक लेकर आ रहा है पेशेंट, तुम्हारी दवाई के बाद अगर उसको एपिस्टैक्सिस हो रहा है तो भगवान का शुक्र अदा करो, क्योंकि आपने उसको स्ट्रोक से बचा लिया है। हेलो, समझ रहे हो ना? तो फिर उसको समझाना कि भैया इथामसिलेट मत ले, ये नोज ब्लीडिंग बंद करने के लिए, ये नाक से आया है, तेरे दिमाग में ऐसा खून बचा। डेयर टू बी वाइज, एक्सप्लेन देम कि भाई ये प्रेशर बढ़ा था नाक में और सर के अंदर सिर्फ एक लेयर है सर, तो ये ब्लड वेसल उधर जाके बस्ट होती थी, भगवान ने नाक से निकाल दिया, शुक्र अदा करो, पेड़े बांटो, सदका दे दो, व्हाटएवर। समझ रहे हो? तो प्लीज रिमेम्बर टू कीप योर लॉजिक इंटैक्ट। दिस इज व्हाई मैं लेमेंस को हमेशा एडवाइस देता हूँ कि भाई आप होम्योपैथिक कितना भी जानकारी हो आप मत प्रैक्टिस करो, एक डॉक्टर को करने दो। और डॉक्टर को भी बोलता हूँ कि पैथोलॉजी का ज्ञान रखो, लॉजिक का ज्ञान रखो प्लीज। ये नहीं कि बस कर रहे बुक और पढ़ रहे, अगर आपको फिजियोलॉजी नहीं आती, पैथोलॉजी नहीं आती, एनाटॉमी नहीं आती, तो देन डोंट प्रैक्टिस, स्टडी हार्ड एंड देन प्रैक्टिस। हेलो, okay, I think we should wind up. It's 6:15 now. Thank you very much. If any questions you can ask in the group or you can ask on YouTube after seeing the lectures again. This way we will conclude the session, the series of autoimmune disease now. In the next lecture, inshallah, I will try to cover case taking. सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी सर, आर्थराइटिस के थोड़ा सा मेटाफिजिक्स पे अगर आप कुछ ले लेते तो मेटाफिजिक्स आप पढ़ लो ना। नहीं सर, जैसे अभी नी जॉइंट है तो नी जॉइंट कब पकड़ेगा, या फिर शोल्डर जॉइंट है, जैसे अभी
अरे हाँ बेटा, शोल्डर मैं जॉइंट। समझ गया। मैं आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप लुई है की बुक पढ़ लो, आप बायोजीनोलॉजी की बुक पढ़ लो, उसमें बेटा उसके जीएनएम के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, learninggnm.com पर से, उस पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें आपको स्पेसिफिक मिल जाएगा ओके कि सर, नी जॉइंट कहाँ है। हाँ, तो वो समझ ओके लो। ओके सर, वैसे मेरी अपकमिंग किताब के अंदर मैंने उसको किया हुआ है कि कैटेगराइज किया है कि नी कब अफेक्ट होता है, ये कब होता है, बट इट्स अ बिग थिंग। वी ऑल आर वर्किंग, डॉक्टर मनीषा, मानसी, डॉक्टर प्रणीता, प्रिया, डॉक्टर तबस्सुम, मानिक, हम लोग उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर राइटिंग दैट इन स्कीमेटिक फॉर्मेट, क्योंकि आप लोग बहुत आलसी हो, किताबें नहीं पढ़ते हो, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर कॉपीराइट के वगैरह बहुत पंगे आते हैं। तो बेस्ट चीज की आप वो किताबें जरूर पढ़ो जाके, उसमें से डेफिनेटली। आपको बहुत अंदाज मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। और सर मैं कैसे और एक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम आपको, नेक्स्ट लेक्चर सर, में आई विल ट्राई टू कवर केस टेकिंग। यस हाँ, बेटा। और सर और एक छोटा सा रिक्वेस्ट ऐसी थी मेरी कि सर स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं ना, स्पेशल चिल्ड्रन, उन पे भी सर थोड़ा आप एडीएचडी, आपका मतलब एडीएचडी है क्या? हाँ सर। लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे याद दिला देना ना। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। Okay. Thank you so much, Liaquat, for this wonderful session on arthritis. We've learned everything, right from where the disease is pinching to how we should start and where we should conclude the remedy. Thank you very much for this wonderful session. Thank you. Thank you. It's a pleasure always. Bye. God bless. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.